علمی کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر، تلاوت قرآن پاک اور علماء کرام کی تقاریر کا مرکز۔ 23 اپریل 2006 کو محمد شبیر نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ انڈیا میں ملاقات کی اور ان سے آٹوگراف لیا۔ ایک جگہ پہ گیانی سے گیانی ملے تو کرے گیان کی بات، گدھے سے گدھا ملے تو ہوئے لاتھا لات۔ ابھی دو گیانی کیا بات کریں گے، پہلی تو بات یہ ہے، لیکن میرے جیسا اگیانی تھوڑا سا اب سے کچھ جاننا چاہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں پہلے کچھ 4-6 مہینے پہلے ایک پستک پڑھی ہے جس کا ٹائٹل ہے مراٹھی میں، جس کو میں ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں، صوفی واد کا انترنگ، جس کے لیکھک ہے ڈاکٹر علیم وکیل، جو کہ کچھ لیکچرر ہیں ان پولیٹیکل سائنس سنگمنیر کالج، اور انہوں نے اس بک میں کلیئرلی یہ مانا ہے کہ صوفی واد اور مسلم، اس پر بدھ دھرم کا بہت پربھاؤ ہے، بدھ کے وچاروں کا بہت پربھاؤ ہے۔ سو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو اینڈ یور آرگیومنٹ ان دیٹ فیور، سو از اٹ ٹرو اور فالس؟ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے کتاب لکھی ہے اور کہا ہے کہ صوفی دھرم، اسلام دھرم، بدھ دھرم کا بہت پربھاؤ ہے۔ از اٹ رائٹ؟ یہ صحیح ہے کیا؟ پہلا چیز، اسلام کو جاننے کے لیے آپ کو تحقیق کرنا چاہیے اسلام کی کتاب کے بارے میں۔ سب سے اول کتاب ہے قرآن۔ جو میں کہتا ہوں اسلام میں، وہ کوئی معنی رکھتا ہی نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زیرو ان اسلام۔ اسی لیے میں تقریر میں کہتا ہوں کہ میں نے کہہ رہا ہوں قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 5 ورس نمبر 90 میں شراب پینا حرام ہے۔ جو آپ شخص کا ذکر کر رہے ہیں، میں ان کے بارے میں کبھی پہلے سنا نہیں۔ آپ کو اسلام کو جاننے کا ہے، قرآن پڑھو اور صحیح حدیث جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث صرف۔ اس کے بعد جو بھی انسان کچھ بھی بات کرتا ہے، اگر قرآن کے حوالے اور صحیح حدیث کے حوالے سے کرتا ہے تو اس کی بات مانو، اگر نہیں کرتا ہے اس کو پھینک دو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لیکچرر ہو۔ اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک، میں خود شونیہ ہوں، زیرو۔ اسی لیے تقریر میں جب میں اسلام کی بات کرتا ہوں تو قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، صحیح حدیث کا دیتا ہوں۔ ہندوازم کی بات کرتا ہوں، وید کا حوالہ دیتا ہوں، اپنشد کا دیتا ہوں۔ کرسچینٹی کیا کرتا ہوں، بائبل کا دیتا ہوں۔ جو آپ ذکر کر رہے جو کتاب کا، میں کبھی پہلے سنا نہیں ہوں، لیکن اس بات کو میں مانتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ بدھ دھرم اور اسلام میں یکسانیت ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام مذہب نیا مذہب نہیں ہے، بدھ دھرم سے پہلے آ چکا ہے۔ اور تقریر کے پہلے میں نے کہا ہوں، لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے وجود میں آیا۔ نہیں، وہ بہت پہلے سے، انسان زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے آدم علیہ السلام نے پیغام دے اسلام کا، نوح علیہ السلام نے دیے اسلام کا، موسیٰ علیہ السلام نے دیے اسلام کا، عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا۔ تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی نہیں ہے، آخری پیغمبر ہے۔ تو اسلام بہت پہلے سے ہے، بدھ دھرم سے پہلے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا بدھا اللہ کے پیغمبر ہے، ان کا نام سے ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ تو میں نے کہہ سکتا ہوں ہے کیا نہیں، ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، میں نہیں جانتا ہوں۔ لیکن اگر ہے بھی تو اس وقت کے لیے تھے، ان لوگوں کے لیے۔ کچھ باتیں یکساں ہوں گی، کچھ باتیں، اور میں نے اس کے پر تقریر کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام اس سے پربھاوت ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مان بھی لوگ کہ گوتم بدھ خدا کے پیغمبر تھے، وہ اس وقت کے لیے تھے، ان لوگوں کے لیے تھے، آج کے لیے نہیں۔ آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کلام قرآن اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے انسانیت کے لیے، چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے، امریکہ میں یا انگلینڈ میں۔ ابھی بہنوں کے شعبے سے سوال کیا جائے، مائک نمبر 4 پر۔ Good evening. I'm Melissa and I'm doing my MBA in ICFI University and I'm a Christian. There was a question regarding the food. In the Old Testament, it was said that we do not eat pork, but the New Testament, Jesus said that all food are fit to be eaten. So the question arises there. بہن نے سوال کیا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت مت کھاؤ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے نیو ٹیسٹمنٹ میں کہا کہ سب
खाना आप खा सकते। ये है बाइबल। मैं चैलेंज करता हूं आपको दिखाने के लिए बाइबल में कहां कहा है ईसा अलैहिस्सलाम ने कि सब खाना जायज है। देयर इज समथिंग लाइक अ रेड लेटर बाइबल सिस्टर। एक रेड लेटर बाइबल है जिसका मतलब जो कुछ ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है वो रेड इंक में लिखा है, लाल लाल रंग से लिखा हुआ है। और अगर आप लेटर बाइबल लेंगे और तहकीक करेंगे, बहुत कम चीज रेड में लिखी है बाइबल में। रेड मतलब ईसाई के स्कॉलर्स कहते हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो ब्लैक में वो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा। जो सिस्टर जिक्र कर रही है वो कर रही है सेंट पीटर के बारे में, नॉट जीसस क्राइस्ट। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि आप सब कुछ खाओ। एक ख्वाब आता है पीटर को, उस ख्वाब में उसने देखा कि सुअर खाना अच्छी बात है, इसलिए सुअर खाना सही हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 से 20 तक, Jesus Christ peace be upon him says in the gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17 to 20, think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And not one jot or tittle shall pass away until the law be fulfilled. And anyone who breaks one of the least commandments shall be called least in the kingdom of heaven. And whosoever shall keep the commandment and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Sister, this is a verbatim quotation from the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20 of King James Version. I am speaking from my head, God-given computer. You can check it up. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द प्रॉफिट्स। मैं नहीं आया हूं पहले शरीयत को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन मैं आया हूं उसको मुकम्मल करने के लिए, उसकी तस्दीक करने के लिए। और अगर आप एक भी नुक्ता पुरानी शरीयत का छोड़ते हैं तो आप जन्नत में कभी नहीं जाएंगे। इवन इफ यू ब्रेक वन जॉट और टिटल you shall not enter the kingdom of heaven. Who said that? Jesus Christ peace be upon him. एक भी चीज जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है अगर आप उसको तोड़ते हैं तो जन्नत में जाएंगे नहीं। वो तो सेंट पॉल और बाकी लोग आए और फिर बदलने की कोशिश की। Out of the New Testament, sister, there are 27 books in the New Testament. More than 50% have been written by Saint Paul. Saint Paul is a self-appointed apostle of Jesus Christ peace be upon him. He hardly met him. Some scholars say he only met him once. So we have to follow the teachings of Jesus Christ peace be upon him, not of Saint Paul. हमें मानना चाहिए ईसा अलैहिस्सलाम का कहना, सेंट पॉल का नहीं। ईसाइयत के बारे में बात कर रहा हूं मैं, पॉलिनिटी के बारे में नहीं। सिस्टर, अगर आपको अच्छा ईसाई बनना है तो आपको सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। अगर खाएंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे। उसके पहले आपको इबादत करना चाहिए सिर्फ एक खुदा की, मानना चाहिए आखिरी पैगंबर में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक पैगंबर आएंगे जो आपको अच्छी बात समझाएंगे। You have to believe in Prophet Muhammad peace be upon him. If you don't believe in Prophet Muhammad peace be upon him, you are not a good Christian. You have to follow the last and final revelation, that is the glorious Quran, and then only can you enter heaven. Hope that answers the question, sister. माइक नंबर 5 से सवाल करें। Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols. But there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there is the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow on the path of Islam.
So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran? Like to be in the similarities. बहन ने 2 सवाल किया है. पहला सवाल कि वो मानती है कि खुदा एक है, लेकिन वो दिल में मानती एक, लेकिन करती है सिजदा मूर्ति को. तो क्या ये जायज है? मैं कहूंगा मेरे वालिद से, मैं आपको वालिद मानता हूं, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी को बोलता है तू मेरा पिता है. दूसरी औरत को कहता हूं कि तू मेरी वालिदा है, तू मेरी माता है, और मेरी माता को मैं पूछता भी नहीं हूं, उसके मुंह देखता भी नहीं हूं, तो क्या मेरी माता मुझसे खुश रहेंगी? अगर आप मानते एक खुदा तो सही खुदा की इबादत करो, सही खुदा को सिजदा करो. गलत खुदा की इबादत करना शिर्क है. कुरान में लिखा है, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में लिखा है कि अल्लाह ताला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी भी नहीं माफ करेगा. ये वेद में भी लिखा है. वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति. वो खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है. प्रतिमा संस्कृत में उसकी मानी होती है सब कुछ के, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल, सारे चीज को समेटता है प्रतिमा की मानी. उस खुदा का ना कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है. अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो आप वेद के खिलाफ जा रहे हैं और कुरान के भी खिलाफ जा रहे हैं. आप सोचिए, मैं दिल में मानती हूं खुदा एक है, लेकिन गलत खुदा की इबादत कर रही है. अगर मैं कहूंगा कि मैं दिल में इज्जत करता हूं मेरे वालिदैन का, माता पिता का, ना उनका मुंह देखता हूं, ना कुछ दिल में करता हूं, लेकिन खिदमत करता हूं दूसरे किसकी, तो ये गलत है. हमें सही खुदा की इबादत करना चाहिए. दूसरा कोई भी गुनाह करे, शायद अगर खुदा चाहे तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, जो वेद में भी लिखे है, बाइबल में भी और कुरान में. आपका दूसरा सवाल, वेद में कुरान का जिक्र है, और अगर है तो हम दोनों की बात कैसे मान सकते हैं, क्योंकि इख्तिलाफ भी है. बहुत अच्छा सवाल. मैं मानता हूं कि वेद और कुरान में यकसानियत भी है, इख्तिलाफ भी है. अगर आपके पास 10 पॉइंट्स है, 10 चीज है, 10 चीज में आप मानते, मैं 10 चीज में मानता हूं. अगर 5 चीजें मिलती जुलते हैं, तो जो चीज मिलती जुलती है कम से कम उसके ऊपर तो हम अमल करें. जो इख्तिलाफ है बाद में डिस्कस करेंगे आप सही का मैं से. तालविला कलमितिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है. तो मैं ये कहता हूं बहन से कि कम से कम जो वेद और कुरान में यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो. पूरे वेद और पूरे कुरान पर आप अमल कर ही नहीं सकते. ये जो लोग इंटरफेथ डायलॉग करते ना कि हिंदुइज्म भी सही, हिंदू धर्म भी सही, ईसाई भी सही और इस्लाम भी सही, ये लोग को बेवकूफ बना रहे. अगर सवाल होता है कि 2 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5, ये कुछ मैथमेटिक्स है? ये जानते ही नहीं धर्म के बारे में. मैं ये कह रहा हूं जो यकसा है, तो आपके वेद में लिखा हुआ है कि एक आखिरी पैगंबर आएगा, अंतिम ऋषि जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो एक पैगाम को लेके आएगा. जो कुरान का जिक्र है वेद में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है. और वेद के स्कॉलर्स अक्सर कहते हैं कि वेद आज की तारीख में प्योर फॉर्म में नहीं है. बिब्लिकल स्कॉलर्स बोलते हैं बाइबल इज नॉट इन द प्योर फॉर्म. पूरा मुकम्मल तौर पे इसमें मिलावट है, वेद में भी मिलावट है. लेकिन स्कॉलर ये कहते हैं कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं है. अगर मैं आपको एक गिलास दूंगा पानी का और उसके अंदर एक कतरा डालूंगा गटर के पानी से और मिला लूंगा, आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे. आपके सामने जब डालूंगा तो क्या आप गिलास का पानी पीएंगे? पीएंगे? नहीं पीएंगे. आप जानते हैं कि उसमें एक कतरा मिलावट है, गटर का पानी है. नहीं देखेंगे, मिल जाएगा, रंग से पता नहीं चलेगा, शायद पी लेंगे. जब पता लग गया तो कौन पीगा? उसी तरीके से ये वाहिद किताब है जो कभी बदली नहीं जा सकती, क्योंकि खुदा ने खुद कहा इस किताब के अंदर सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने ये किताब नाजिल की कुरान शरीफ, और हम इसकी हिफाजत करेंगे. और इसकी हिफाजत खुदा करेंगे, हम चाहे तो भी बदल नहीं सकते.
माइक नंबर 1 से बराए करम सवाल करें। I am Suresh Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of Judgment Day in religions other than Islam? भाई साहब ने पूछा कि जजमेंट डे का जिक्र है कुरान के अलावा बाकी किताबों में। बिल्कुल सही है। मैंने कल जिक्र किया था कि हिंदू मजहब में भी लिखा है, हिंदू मजहबी किताब में वेद में लिखा है कि इम्तिहान होगा, फिर स्वर्ग और नरक में जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि डे ऑफ जजमेंट का। कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, एवरी सोल शैल हैव अ टेस्ट ऑफ डेथ। हर नफ्स मौत को चखेगा, लेकिन फाइनल जजमेंट, फाइनल हिसाब किताब होगा आखिरत में। और जो कोई आग से, दोजख से बच जाता है और जन्नत में जाता है, वो ही सफलता पाता है इस जमीन पर, इस दुनिया में। तो हिंदू धर्म किताब में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है और कुरान में भी लिखा है। माइक नंबर 2 से सवाल करें। My name is Sagar Suryakant Wagmare. My question to you is that the book sent by the God for that period, but where it is written that Quran is the last book sent by the God. भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि कुरान में कहां लिखा है कि कुरान इज द लास्ट बुक सेंड बाय गॉड। बहुत अच्छा सवाल है। बाकी किताबें सिर्फ अपने लोग के लिए भेजी गई थी। मैं बाइबल का जिक्र कर चुका हूं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 to 6। कुरान में जिक्र आता है सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके पिता नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। किताब नाजिल करने के लिए जरूरत है एक रसूल की। तो जब रसूल ही नहीं आएगा तो किताब कैसे आएंगी? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है कुरान में कि वो आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, उसके बाद किताब तो नाजिल हो ही नहीं। इट्स अंडरस्टूड, बोलने की जरूरत नहीं। आखिरी नबी, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसीलिए आखिरी नबी सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान में जिक्र आता है कुरान भी सारी इंसानियत के लिए भेजा गया है। बाकी जितनी किताबें हैं कुरान में लिखा है कि सिर्फ भेजे गए थे अपने लोग के लिए, पैगंबर भी और वो कलाम भी। लेकिन कुरान मजीद जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए थे, कुरान भी सारी इंसानियत के लिए। इसका जिक्र है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, सूरह ज़ुमर चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 41। और भी हवाला दे सकता हूं मैं, लेकिन ये काफी है। माइक नंबर 3 से सवाल करें। My name is Rakesh Bosle. I'm a pharmacy student. My question is, can you please explain the creation of universe and life on the basis of Islam? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि कैन यू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। ये कायनात किस तरीके से कायम हुआ इस्लाम के नजरिए से। आज साइंस क्या कहती है, पहले वो तस्करा करूंगा मैं। साइंस कहती है कि कायनात कायम हुई बाय बिग बैंग। पहले ये कायनात वो तो प्राइमरी नेबुला एक थी, उसके बाद एक धमाका हुआ, उसके बाद आए गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून और ये जमीन जिस पे हम रह रहे हैं। इसे कहते हैं बिग बैंग। और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था कुछ साइंटिस्ट को 40-50 साल पहले। कुरान में इसका जिक्र है सूरह अल अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में। इसमें लिखा है, डू नॉट द अनबिलीवर्स सी अवलम यरल लजीना कफरू, के काफिर लोग नहीं जानते, अनबिलीवर्स नहीं जानते, अवलम यरल लजीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कानत रत्कम तकनाहुमा, कि द हेवन एंड द अर्थ, ये जमीन और आसमान एक थे और अल्लाह ने इन्हें सेपरेट किया, तफरका, इन्हें छुटा दिया, दे सेपरेटेड। तो कुरान की आयत जो है सूरह अंबिया की सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 बिग बैंग इन अ नटशेल है। तो जिस तरीके से कुरान जिक्र करता है 1400 साल पहले, साइंस आज कल बोल सकते, यस्टरडे, 50 years बैक, 40 years बैक,
40 साल पहले, 50 साल पहले, आज साइंस मानती है किस तरीके से कायनात वजूद में है, और इसका जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में 1400 साल पहले है. मैंने एक तकरीर किया हूं, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कन्फ्लिक्ट और कंसिलिएशन, और उसमें डिटेल में साइंस के बारे में बात किया हूं कि जो चीज साइंस आज जान रही है, कुरान में इसका जिक्र है 1400 साल पहले, क्योंकि कुरान इज फार सुपीरियर टू साइंस, क्योंकि कुरान का लेखक, ऑथर इस जमीन को बनाने वाला है, वो हमसे, आपसे और हमसे और अच्छा जानता है. माइक नंबर 4 खवातीन के शोबे से सवाल करें. I'm Amreen, I'm a student. I would like to ask that the only difference between Muslims and Christians is that Christians believe that there is a relationship of a son and a father between Jesus Christ and God. So, and when we try to approach them regarding this, they do not believe. So what should we say? बहन का सवाल था, जब वो क्रिश्चियन से बात करते हैं, वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं और मानते खुदा के बेटे हैं, तो किस तरीके से उनके साथ हम बहस कर सके या उन तक पैगाम पहुंचाए. अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल हैज गॉट सन्स बाय द टन्स. बाइबल में लिखा हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे. बाइबल में बहुत से बेटे अल्लाह के, बाइबल में लिखा है आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा था, इसराइल अल्लाह का बेटा था, एफ्राइम अल्लाह का बेटा था. एंड बाइबल में लिखा है बुक ऑफ रोमन्स में चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 14 में, ऑल दोज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर सन्स ऑफ गॉड. जो कोई अल्लाह की बात मानता है वो अल्लाह का बेटा है. तो कहने के लिए हम कहते हैं ना अल्लाह का बंदा है, अल्लाह मियां की गाय है, तो उस तरीके से कोई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, हमें कोई एतराज नहीं उस सेंस में, उस सेंस में जिस सेंस में वो अल्लाह की बात मानता है, इसीलिए अल्लाह का नेक बंदा है. तो उस तरीके से बाइबल में कई अल्लाह के बेटे हैं, खुदा के बेटे, लेकिन ईसाई कहते नहीं नहीं नहीं, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम खुसूसन बेटा है, ही इज द बिगॉटन सन. और वो कोट करते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, हूसोएवर बिलीवeth in him shall not die but have everlasting life. बाइबल में और भी बिगॉटन सन है, लेकिन जब मैं पूछता हूं ईसाई से बिगॉटन की मानी क्या है, वो ईसाई जवाब नहीं देता है. क्यों? जो अंग्रेजी जानता है वो चुप हो जाएगा. बिगॉटन मतलब सायर्ड बाय गॉड. बिगॉटन मतलब, ये बिगॉटन जो चीज है, जन्ना, जन्ना किसे कहते हैं? वो जन्ना जानवरों की चीज है. सेक्स, इट बिलोंग्स टू द फंक्शंस ऑफ सेक्स ऑफ द लोअर एनिमल्स. ये खुदा के लिए कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकता कोई भी. इसीलिए कुरान में लिखा है ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है. और ये लफ्ज जो बिगॉटन है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 16 में, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन of the Bible, revised by 32 eminent Christian scholars, backed by 50 different corporate denominations. ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन एक नया एडिशन है, रिवीजन है बाइबल का, जिसने 32 माहिर ईसाई स्कॉलर्स मिलके इसको रिवाइज किए, इसको सुधारे, और 50 बड़े क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजर्स ने सपोर्ट किया. ये बाइबल सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन. इसमें ये स्कॉलर्स लिखते हैं कि ये लफ्ज बिगॉटन इज एन इंटरपोलेशन, इज अ कंकॉक्शन, इज अ फैब्रिकेशन, वो एक मिलावट है, उसे बाइबल के बाहर फेंक दिया. तो अब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ेंगे बाइबल का, ये लफ्ज बिगॉटन है ही नहीं, क्योंकि कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है लम यलिद वलम युलद. सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 3 में, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है. तो जो वर्स के जरिए, जो लफ्ज के जरिए क्रिश्चियन लोग बात करते, वो लफ्ज क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते ये मिलावट है और बाइबल के बाहर फेंक दिए है. माइक नंबर 5 से सवाल करें. Assalamu alaikum, Mrs. Zakir Naik and all people around here. My name is Bhavna Nalavde. I'm a Hindu.
I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, ایک مشہور فنکار ہیں, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. بہن نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ میوزک حرام ہے. قرآن میں لکھا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, اوبے اللہ اوبے دا میسج, اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو. تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہے, ہمیں ماننا چاہیے. قرآن میں ڈائریکٹ ورس نہیں ہے کوئی صاف الفاظ سے کہ میوزک حرام ہے, انڈائریکٹ ہے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے, صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صرف ڈف ہوتا ہے ون سائیڈڈ ڈرم, ڈف الاؤڈ ہے, اس کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. یہ صاف طور پہ لکھا ہے. ابھی آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میوزک از سودنگ فار دا سول. میرا دوست کہتا ہے شراب بھی سودنگ فار دا سول ہے, شراب سے مجھے سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو سکون ملتا ہے لیکن اس سے نقصان زیادہ ہے. تو میوزک کیوں حرام قرار کیا ہے؟ اٹ انٹاکسیکیٹس. قرآن میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219, شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. قرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے, لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو میوزک سے. دیر از میوزک تھراپی آلسو. قرآن میں ایک سورہ شعراء ہے, پوئٹس. قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے, حرام نہیں کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے. کیوں؟ جب ہم شعر شاعری کرتے ہیں اکثر اتنی شعر شاعری کرتے ہیں کہ شرک کی طرف جاتے ہیں. میں اگر راجا کی تعریف کر رہا ہوں اتنی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لیتا ہوں. کچھ لوگ نعت پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, نعت پڑھنا اچھی بات ہے, بہک جاتے اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں, وہ بھی حرام ہے. کہتے میں نے ایک عرب دیکھا بنا عین کا. عرب دیکھا بنا عین کا مطلب رب کو دیکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملانا بھی حرام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو ملایا بھی حرام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. ہم ان سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ سے نہیں ملا سکتے. اسی لیے 5 بار اذان میں ہم سنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم عبادت کرتے صرف اللہ کی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے, اس کے بندے ہیں, اللہ نہیں ہے. تو بسم اللہ خان جو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کس کو سکون پہنچتا ہوگا, لیکن جب ہم میوزک لیتے اکثر کیا ہوتا ہے میوزک کے اندر ایک انسان بہک جاتا ہے. ہم گانے سنتے نا, وہ ہیرو ہیروئن سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا, ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا. یہ ہم جانتے ہیں صحیح نہیں ہے تو بھی ہم گنگناتے. وہ کیوں میوزک ہوتی ہے؟ ہم جانتے کون چاند یا تارے توڑ کے کو لے کے آ سکتا ہے. ہم جانتے کتنے الفاظ ہم جب سنتے یہ گانے کے بکواس ہے لیکن پھر بھی گنگناتے. نہیں سننا چاہتے تو بھی سنتے. گھر کے باہر بونگا لگا ہے 1 2 3, کیا 1 2 3, نہیں سننا چاہتے پھر بھی سننا. تو میوزک میں کیا ہوتا ہے کہ میوزک کبھی کبھی من کو بہا لیتا ہے. صحیح کہہ رہے بسم اللہ صاحب, اتنا بہا لے جاتا ہے کہ شرک بھی کرتے تو ہم کہتے صحیح ہے, ہم اسلام سے دور جاتے پھر بھی اسے گنگناتے. اسی لیے اسلام میں میوزک جو آپ کو غلط جگہ پہ لے کے جاتا ہے, ڈف کے علاوہ باقی سب انسٹرومنٹس اسلام میں حرام ہیں. 1 نمبر مائک سے سوال کریں اگر کوئی ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں تو. میں غیر مسلم راجیش پوار آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم نبی نے بھی حج کیا ہے اور محمد نبی نے بھی حج کیا ہے, کیا عیسیٰ نبی نے بھی حج کیا ہے؟ میں نے اچھا سوال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حج کیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیے, کیا عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیا؟ میں خود کوئی آیت نہیں جانتا ہوں قرآن میں جس میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیا. نہ کوئی ڈائریکٹ ریفرنس ہے بائبل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیے. لیکن بائبل میں یہ ذکر ہے کہ جو کوئی
मक्का की वादियां में जाता है उसके ऊपर सलामती रहती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने किए कहने में ये नहीं जानता हूं, लेकिन ये कहना कि सारे पैगंबरों ने हज किया कि नहीं, ये मैं नहीं जानता हूं। इस्लाम में अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद हज फर्ज है। अभी मुसलमान को अगर वो हैसियत रखता है माली हालत से या सेहत से, उसे कम एक बार तो हज करना चाहिए, उसके लिए फर्ज है। प्रॉब्लम से क्वेश्चन 2 नंबर माइक से सवाल करें। मैं जेम्स शिंदे पिंपरी से आया हूं और मैं एक बजाज का वीआरएस लिए के एक पर्सन हूं, वीआरएस लिया हूं बजाज से। और मैं कल ही अपने एक दोस्त से, इस्लाम दोस्त से मैं सुना कि जाकिर साहब यहाँ पर आए हैं और वो सब हिंदू धर्म के बारे में और क्रिश्चियन के बारे में जो समानता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो मैं कल यहाँ 6 बजे आया था और 6 बजे से मैं आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत आनंद हुआ। और आज भी मैं दूसरे दिन भी समय के पहले यहाँ आया हूँ और आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत ही खुशी है। और मैं इस सब बात के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ कि अल्लाह ने आपको जो भी कुछ ज्ञान दिया है सचमुच आज के युग में बहुत ज़रूरी है। और मैं एक सवाल आपको इस बारे में यही पूछना चाहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूँ। और जब भी आपकी बात सुनी और उसमें से कुछ सवाल, एक ही सवाल मेरे मन में आया है और वो सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि गॉस्पल जो है जॉन का गॉस्पल, उसका जो 5वां अध्याय है उसमें 19 से लेकर 29 वचन जो है, जो मैं पढ़ चुका हूँ, मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए ताकि मैं उसमें खुश हो जाऊं कि सचमुच वो वचन क्या है। भाई साहब यहाँ तकरीर में आने की खुश हुए और मैं भी खुश हूँ कि आप आए इधर। आप ईसा अलैहिस्सलाम में मानते, मैं भी मानता हूँ। फर्क ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल क्या पूछना चाहते, मैं पढ़ सकता हूँ 19 से 29 तक, बट काफी वक्त लगेगा। आपका सवाल क्या है आप पूछना, मैं जवाब दूंगा। आपका सवाल क्या है? सवाल जो है उस 10 वचनों में है, 19 से लेकर 29 तक जब पढ़ेंगे तो उसी में सवाल है और उसका जवाब भी उसी में है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि असल में वचन क्या समझाते हैं हमको। सवाल पूछिए अपना, सवाल क्या है? वचनों में ये सवाल है, वचनों में ये जवाब है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप पढ़ के सुनाए और उसका अगर सबको समझाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 19 से लेकर 29 तक। 19 से लेकर 29 तक, हाँ 10 वचन, 19 से लेकर 29 तक। 19 से 29 तक, यस ठीक है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19 में लिखा है, ये बीच में से शुरू हो रहा है। Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he wills. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father who hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth in him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth. They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. ये जो वर्सेस मैंने पढ़ी, मैं कहूँगा कि जो मैं तकरीर किया हूँ, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज़ लिखा है बेटा,
मैंने कहा पहले बेटा के मानी खुदा को मानने वाला. बेटे बहुत है. आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इज़राइल, आइजैक, बहुत बेटे. लेकिन बेटा वो नहीं, जना हुआ बेटा. तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे. आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे. मैं अल्लाह की बात मानता हूं, मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा. ठीक है, तो इससे साफ जाए. इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो. वही तो मैं कर रहा हूं. लेकिन जो बेटा कहा पहले उसका जांच पड़ताल तो करें हम. जो पॉल कह रहा है उसकी बात थोड़ी मानना चाहिए. हमें मानना चाहिए जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा. और इसमें लिखा है कि उनने मुर्दों में जान डाली. ये तो कुरान में भी लिखा है. और मैं तकरीर में कहा हम ये मानते हैं जो मॉडर्न क्रिश्चियन नहीं मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से. मैं कहूं तो जो कुछ मुख्तसरन सा इस 10 वर्सेस में लिखा, मैं अक्सर चीज जो लिखे मानता हूं, लेकिन उसको समझने का ढंग अगर आप गलत तरीके से समझते वो बेटा मतलब जना हुआ बेटा है तो आप गलती कर रहे. आप बुरी बाइबल पढ़े ही नहीं. आप समझ ना. तो सही तरीके से समझना इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट. तो हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे. और कई बार जिक्र है. आप गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, यही जॉन में लिखा है. यही जॉन में लिखा है चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6 में, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिंग अनटू द फादर बट बाय मी. आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ. मैं ही तरीका हूं, सच्चा तरीका. आपको जिंदगी मिलेगी. जो आदमी मेरे तरीके पे चलता है वही सही तरीका है. आई एम द वे द ट्रूथ एंड लाइफ, नो मैन कमिंग अनटू द फादर बट बाय मी. आप खुदा को पहुंचना चाहते हैं तो मेरे तरीके पे चलिए. ये वर्स को लेते बाइबल को कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो खुदा है. गलत फहमी है. सही जानना चाहते कॉन्टेक्स्ट पे जाइए. यही गॉस्पेल ऑफ जॉन जिसकी बात कर, आगे की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं चैप्टर नंबर 14 वर्स 1 में, उसमें लिखा है कि आप अगर खुदा में मानते हैं तो मुझ में भी मानो. मेरे खुदा का घर बहुत बड़ा है और बहुत से कमरे हैं. मैं वहां जा रहा हूं आपके लिए जगह बनाने के लिए. और आप जानते हैं मैं कहां जा रहा हूं. तो फिलिप, आप फिलिप को जानते हैं ना. फिलिप कहता है आप कहां जा रहे हैं मैं नहीं जानता हूं. तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिंग टू द फादर बट बाय मी. अने मैं ही वो सही तरीका हूं, अच्छा तरीका हूं. आप खुदा को मेरे तरीके अलावा पहुंच नहीं सकते. और मैं इस बात पे मानता हूं हर वक्त, हर रसूल के वक्त वही रसूल सही तरीका बताता है. एट द टाइम ऑफ मोजेस वॉज द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन केम अनटू द गॉड बट थ्रू मोजेस, peace be upon him. At the time of Jesus Christ, peace be upon him, Jesus Christ was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the way of Jesus Christ, peace be upon him. But today is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man coming unto Almighty God but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. तो मैं मानता हूं जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में कहा वो अल्लाह के पैगंबर थे. हम उनकी इज्जत करते, लेकिन उनने ये कहा कि और एक पैगंबर आने वाला है. वही गॉस्पेल ऑफ जॉन में. आप 5वें आप बात कर रहे हैं, मैं 14 पे पहुंच गया, अभी 16 पे पहुंच गया. बाइबल से नहीं पढ़ रहा हूं मैं, मेरे ब्रेन से बोल रहा हूं. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 और 14 में लिखे, मैं आपसे सब कुछ अभी नहीं कह सकता हूं क्योंकि आप नहीं समझेंगे. जब वो आदमी आएगा, हक का रूह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, वो आपको सारी सच्चाइयां बताएगा और मेरी तारीफ करेगा. इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा आपको मानना चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हैं. इसीलिए मैं कहता हूं मैं ईसाई से बेहतर ईसाई हूं. लेकिन आपको अच्छा बेहतर ईसाई बनना है तो कुरान में मानना ही पड़ेगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानना ही पड़ेगा. माइक नंबर 3 से सवाल करें. Good evening, sir. I am Dr. Chavan at this end. Thank you very much for coming to Pune and explaining us the basic tenets of Islam, because there's something which I was not very acquainted with. And basically, I have one question for you. I've always been hearing you on QTV, where you have been trying to, do away with myth-riddled religions. What I want to ask you is, how is Islam going to deal with
the difference in true faith and blind faith? मैंने अच्छा सवाल पूछा है कि इस्लाम में ट्रू फेथ और ब्लाइंड फेथ में किस तरीके से आप तफर्रुक कर सकते हैं. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू फेथ एंड ब्लाइंड फेथ. मतलब सही ईमान और गलत ईमान. हमें पहला ये तहकीक करना पड़ेगा कि कौन सी किताब खुदा की तरफ से भेजी गई है. मिसाल के तौर पे अगर आपका बेटा बीमार है तो आप तहकीक करते हैं तो कौन सा डॉक्टर है. आप किसके पास भी नहीं जाएंगे अरे गहरे के वहां. आप देखेंगे डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमडी है, हार्ट की बीमारी, हार्ट स्पेशलिस्ट क्या जाएंगे. तहकीक करते, फिर जब मुकम्मल तहकीक करते फिर आप उसकी बात मानते. फिर आप हर बार देखते रहे क्या दवा दे रहे. वो जो दवा देता है आप आंख बंद करके खाते. उसे ब्लाइंड फेथ नहीं कहते. आपने तहकीक किया है कौन सा डॉक्टर सही है, उसकी डिग्री क्या है, एमबीबीएस है, एमडी है, कायमे स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है. तहकीक करने के बाद फिर जो वो दवा देते आप खा लेते. That is not called blind faith, that is called a logical faith. But once you are convinced that the person is the right person, then you believe him blindly. But that's not called blind faith, that's called a correct faith. Unless someone proves to you that the doctor is giving you wrong medicine. अगर दूसरा डॉक्टर बोलता है कि वो डॉक्टर जो आपको दवा दिया है आप समझते हो वो एमडी है, लेकिन ये दवा लेटेस्ट रिसर्च में लिखा गया है कि वो जहरीली है, फिर आप नहीं खाएंगे. तो उस तरीके से आप तहकीक करके कुछ फॉलो कर रहे, बाइबल को कुछ फॉलो कर रहे, वेदा को कुछ कर रहे, कुरान को. अभी मैं आके कहता हूं कि देखो साफ कह रहा हूं, ये सिमिलैरिटीज है, ये डिफरेंसेस है. डिफरेंसेस पे बहस नहीं करता हूं मैं, सिमिलैरिटीज की बात कहता हूं. अभी आप तहकीक करो कौन सी किताब सही है, फिर पता लगता है बिना झगड़े के ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है. फिर पता लगता है कि सब डॉक्टर कहते हैं कि वो डॉक्टर सबसे महान है. सब किताबें इशारा कर रहे कुरान की तरफ और आखिरी पैगंबर की तरफ. अगर सब डॉक्टर मानते हैं कि मिस्टर एक्स इज नंबर 1 तो प्रॉब्लम ही नहीं ना. फिर अब वाई के पास जाएंगे इन्हें. सारे किताबें इशारे कर रहे कुरान की तरफ, एक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वेयर इज द डिफरेंस? ट्रू फेथ हैज टू बी इन द कुरान. चैप्टर नंबर 2 में लिखा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी. अलिफ लाम मीम, ये किताब में कोई शक नहीं है, हिदायत की किताब है. और इसमें जो लिखा हुआ है ब्लाइंड फेथ, इसमें लिखा है कि ईमान बिल गैब, ईमान जो चीज आप नहीं देखी उसमें ईमान लाना. ये भी लॉजिकल है. जब कुरान की हम तहकीक करते हैं, आज की तारीख में साइंस इज नंबर 1. साइंस, सब लोग साइंस को मानते हैं, ठीक है. अभी हम जब साइंस के जरिए कुरान की तहकीक करने जाते हैं तो पता लगता है कि तकरीबन 80% जो कुरान कह रहा है 100% 100% सही है. बाकी 20% एम्बिगुअस, अननोन, हमें पता नहीं सही के गलत. ये भी नहीं पता कि सही है, ये भी नहीं पता कि गलत है, एम्बिगुअस. लेकिन मेरी लॉजिक कहती है कि अगर 80% 100% है और बाकी 20% में से 1% भी 0.1% भी गलत नहीं है तो मेरी लॉजिक कहती है इंशाअल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी. कुरान में बिग बैंग का जिक्र है, ज्योग्राफी का, एम्ब्रियोलॉजी का, बायोलॉजी का, तकरीर कर सकते. लेकिन साइंस ये नहीं जानती कि जन्नत या जहन्नम है क्या नहीं. साइंस सोल के बारे में नहीं जानती, आखिरत के बारे में नहीं जानती. साइंस ये भी नहीं साबित कर सकती कि जन्नत है कि नहीं, एम्बिगुअस, दोज़ख है कि नहीं. लेकिन मेरी बुद्धि कहती है जब 80% 100% करेक्ट. लोग बोलेंगे इतना बड़ा डॉक्टर जिन में मानते हैं, सोल में मानते हैं. सोल किधर है? जहन्नम में मानते हैं. तो मैं कहता हूं when 80% 100% करेक्ट, 80% 100% सही है, बाकी एम्बिगुअस, अननोन, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. मेरी बुद्धि कहती है दिस इज ब्लाइंड लॉजिकल फेथ कि इंशाअल्लाह वो 20% भी सही होगा. सो यू शुड हैव ट्रू फेथ, नॉट ब्लाइंडली. बट व्हेन यू रीच टू द ट्रू फेथ, ब्लाइंडली यू विल बिलीव इन द ट्रू फेथ. बहनों के शोबे से माइक नंबर 4 पर सवाल करें अगर कोई गैर मुस्लिम बहन हो तो. Good evening, doctor. This is Melissa once again.
with regards to the food, I asked you about Christianity, but I was not allowed to counter question because the mic was switched off that time. So I had to wait in the turn again. It says in Mark 7 and verse 19 that Jesus said all food are fit to be eaten. So I want you to help me out with that. Mark 7 verse 19. Sister had quoted Mark 7 verse 19. Yeah. Verse number 19. Because it entered not into his heart, but into his belly, and goeth out into the drain, thereby purging out meats. Purging all meats. Where is it mentioned? That all food are fit to be eaten after. Where is it mentioned? I've got the Bible. Which version are you referring to, sister? Good News, New Testament. Good News, New Testament. What does it read? Here I've got the King James Version, which is the most popular of the versions. It says that because it enters not into the heart, but into the belly, and goeth out into the drain, thereby purging all meats. The context, if you read from starting, sister. We are referring to Good News Bible. That's so right. And when he had entered into the house away from the people, his disciple asked him concerning the parable, and he said unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive that whatsoever thing from without enter into man, it cannot defile him? What enters from out cannot defile him. Because it entered not into his heart, but into a belly, and goeth into his drain, thereby by purging all meats. And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man, from within out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders. Sister, it says that what you eat, it doesn't change your heart. That doesn't mean it has given you permission to eat. It says that what you eat, it goes into your belly, and that we know scientifically. It doesn't go into your heart. What you eat, it goes into your belly. But Jesus Christ also said, which I told you earlier, for example, Quran says very clearly that eat of all the things which is good for you. Quran says like that. So if you pick up the word of Surah Baqarah chapter 2 verse number 168, eat the thing which is good for you. There it doesn't say that pork is haram. So when we read the Quran, we take the Quran as a whole. But in 3 other places, the Quran says pork is haram. So sister, same way in this Bible it says, what you eat, you can eat. You can eat the meat. But if it is prohibited somewhere else, that becomes a prohibition. You have to read the Bible as a whole. Unfortunately, Christians pick up verses of the Bible and they quote out of context. So this also, sister, I do agree with this verse. But if you go ahead in the Gospel of Matthew, which I quoted to you earlier, Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17, it says, Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. Unless the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. If you break one of the least commandments, you shall not enter heaven. So now you cannot agree that Jesus Christ, peace be upon him, has made a contradiction. You can't agree with that. So what do you say? Fine. Jesus Christ, peace be upon him, said you can eat all lawful things. But what is prohibited in the Old Testament is yet prohibited. That doesn't mean he overrules. If I agree with this work, then I have to say that Jesus Christ, peace be upon him, is contradicting himself, which I cannot agree. I believe Jesus Christ, peace be upon him, is a prophet of God. So the sister, the thing is that many people are quoting you Bible out of context. Similarly, the Quran says you can eat all animals. All four-footed animals, but the Quran is more clear with the exception named. Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 1. So the exceptions can either be in the Quran or the Sahih Hadith. Similarly, this verse says that all the things which is lawful you can have. It's no problem. But what has been prohibited in the Old Testament is yet prohibited today, because if you break one law or one dot or one tittle, you shall not enter heaven. Hope that answers the question, sister. Assalamu alaikum. I'm a converted Muslim. My name is Sana Sajid Sayyed, and I heard, okay, in Islam, din और दुनिया को लेके चलो. दिन में हम रसूल के रसूल में चलते हैं, हर फर्ज हम अदा करते हैं. दुनिया में many more things अल्लाह ताला ने दिया है, just like a luxurious thing, whatever we are getting in this world. Okay, can you please tell me, can you please specify the things which we can follow, which we have to do? बहन अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम में दीन और दुनिया को साथ में लेके चलना चाहिए. तो हमको दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है. ये लग्जरियस चीज दुनिया की क्या है? कैन यू नेम सम? कुछ चीजों के आप वजाहत कर सके. बाकी मज़ाहिब जितने अक्सर
वो ज्यादातर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को केटर करते। इस्लाम केटर्स टू बोथ बॉडी एंड सोल, जिस्म को भी और आत्मा को भी। इस्लाम में दीन और दुनिया अलग नहीं है, दुनिया इज पार्ट ऑफ दीन। आप अच्छे दीनदार बन ही नहीं सकते जब तक आप अच्छी दुनियादारी नहीं करें। यू आस्किंग व्हाट इज द लग्जरी ऑफ द वर्ल्ड? मैनी बाकी रिलीजन में आपको अगर दीनदार बनना है तो दुनिया छोड़ दो, मोनास्टिसिज्म। आप दुनियादारी छोड़ दो, ना शादी करो ना पैसे कमाओ और हिमालय पे जाओ। इस्लाम में शादी करना फर्ज है, लग्जरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21 में कि उनने मर्द और औरत के बीच में प्यार डाला, so that you may dwell in them in tranquility। एक दूसरों में प्यार डाला ताकि आप उनसे अच्छा सलूक और अच्छे तरीके से रह सको, एंड ट्रैंक्विलिटी, अमन पा सको। इस्लाम में नहीं कि भाई शादी मत करो तो अल्लाह के करीब है, शादी करेंगे तो अल्लाह के करीब है, शादी नहीं करेंगे तो नहीं। ये एक लग्जरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तिजारत करो लेकिन सही तरीके से करो। तो इस्लाम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन की बात बताए उसमें दुनियादारी भी थी। अगर हम देखते हैं कई जगह अल्लाह के रसूल की हदीस आती है, हमें दिखाती है एक शख्स जो सिर्फ दिन रात मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं आप रोजी रोटी भी कमाओ, पूरा टाइम नमाज ही पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह के करीब नहीं आएंगे। दे शुड बी स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन द टू। अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 171 में, ला तगलू फी दीनिकुम, डू नॉट कमिट एक्सेस इन योर रिलीजन। अपने दीन में जास्ती, आउट ऑफ द बाउंड्री मत जाओ, बाउंड्री में रहो। तो इस तरीके से आप जो भी चीज हलाल है, फ्यू चीज जो हराम है उसका जिक्र है, बाकी चीज हलाल है। मिसाल के तौर पे लग्जरी, कुछ चीजें हराम है खाने के लिए, सुअर का गोश्त, शराब, नशे वाली चीज, जहरीली चीज, बाकी तो हलाल है। चॉकलेट पसंद चॉकलेट खाओ, आपके लिए लग्जरी है। टॉबलरॉन खाओ, फेरो रोशे खाओ, जो खाने के खाओ, कैडबरी खाओ, आपको नहीं पसंद मत खाओ, दूसरी कुछ चीज खाओ, बट देखिए कि हराम नहीं है। लोग बोलते इस्लाम में बहुत ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत कम है, कुछ चीज नहीं है, बाकी तो हलाल है, लग्जरी। सो सिस्टर, आपको देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने किस तरह की जिंदगी अपनी जी, लेकिन आप इतना दुनियादारी मत करो कि पैसे इकट्ठा करते रहो। तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह तौबा में सूरा नंबर 9 में आयत नंबर 34 में, लोगों से कहो कि ढेर सारे सोना मत इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करो और चैरिटी मत दो। ऐसे लोग जो इकट्ठा कर रहे दौलत और चैरिटी नहीं दे रहे, खैरात नहीं कर रहे, अल्लाह ताला आखिरत में जहन्नम की आग से, वो सोने से आपको चटके दिलाएगा आपके सिर पे, आपके पीठ पे, और कहेगा ये सोना जमा किए, अभी इसका मजा चको। तो इतना मत मटेरियलिज्म में जाओ कि अल्लाह की बातें भूल जाओ। दे शुड बी स्ट्राइकिंग बैलेंस। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दीन उम्मत वस्त है, इट्स अ मिडिल मोस्ट उम्मा। तो उसका तस्करा, उसके ऊपर लेक्चर दे सकते कई चीज, बट जो चीज हराम है उसको छोड़ के आपको इजाजत है जो चीज आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। माइक नंबर 1 से सवाल किया जाए। मेरा नाम सतीश सिंह है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं 2 दिन से आपकी तकरीर सुन रहा हूँ। आपके तकरीर में मेरे समझ में ये आ रहा है कि कुरान में सबसे ज्यादा इंसानियत है। मेरा सवाल ये है कि दुनिया में हम जो प्रैक्टिकली दुनिया में देख रहे हैं, ये मुस्लिम ही ज्यादा सबसे आतंकवादी है, और जो मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो इंसानियत कहाँ है? माशाल्लाह, भाई साहब ने 2 दिन तकरीर सुनी और फिर यकीन हो गया क्या कुरान में सबसे ज्यादा इंसानियत है। माशाल्लाह, उसके मुबारक देता हूं। लेकिन सवाल अहम है, सवाल गलत नहीं, आपका सवाल सही है। सवाल है कि हम देख रहे हैं मुसलमान ही आतंकवादी है, ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है।
जब हम कुरान पढ़ते हैं तो इसका इजहार होता है, लेकिन ये है क्यों गलतफहमी, जिस तरीके से मीडिया गलतफहमियां फैलाती है हम उसको इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है तो समझ लो। टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है, उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान कोई भी